ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ मतलब कि उजागर करना चाहते हो, कि दसना चाहते हो? जी, सिर्फ मुख से बोलना नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, शाइनिंग स्टार हूँ, और परमात्मा भी जो है वो प्रकाश है। तो उस प्रकाश को हम नज़दीक लेके अपने आत्मा को उससे मिलाते हैं, प्रकाश से प्रकाश मिलता है। साथ में हम ओम चैंटिंग करते हैं। तो एक्सेल में क्या है कि मेरी सारी बुराइयां निकल रही हैं, और इनहेल में क्या है कि परमात्मा की जो शक्तियां आ रही हैं वो मेरे भीतर जा रही हैं। मैम पहले तो ये कि आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम पूनम मल्होत्रा है और मैं दिल्ली तो आई हाँ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਤੋਂ 2022 ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, 2000। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਮੰਡਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੀ, ਅਸਲ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ 2014 ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਅਫੈਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਏਮ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਟਪਟੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਸ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਯੰ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ ਆਖਿਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਰਲੀ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਰਲੀ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਲ ਲੋਕ, ਸਾਧਾਰਨ ਦੀਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧਰਮ ਆਖਿਰ ਕਿ 5000 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਸਵਯੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, 4 ਧਰਮ ਅਸੀਂ 4 ਯੁੱਗ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਾ ਯੁੱਗ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਨ, ਤੇ 100 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਆਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਅਗਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ, ਔਰ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮਨਮਨਾ ਭਵ। ਤੇ ਮਨਮਨਾ ਭਵ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮਨ ਮਨਾ ਭਵ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਅਨੁਭੂਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਬਿਲੋਂਗ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਛਲਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਦਿਨ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੈਸੇ ਫੇਸਿਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ मतलब कि उजागर करना चाहते हो, कि दसना चाहते हो? जी बिल्कुल।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਾਧਾਰਨ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦਿਵਯ ਸਤਸੰਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਦਿਵਯਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਦਿਵਯ ਸਵਯੰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਲਾਈਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सब उसके बच्चे हैं। जब बच्चे दुख से तड़पने लगते हैं तो भगवान को आना पड़ता है धरा पर। वो अपने बच्चों को सुखी देखता है, तो भगवान कहता है कि बच्चे सब मतलब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझ के। और बाबा का यही संदेश है कि सब मतलब शाकाहारी बने, मांसाहारी ना बने, क्योंकि वो भी भगवान के बच्चे हैं। जब हम उसको काट के खाते हैं ना, तो उनको भी तकलीफ होती है और वो डायरेक्ट भगवान तक उनकी आवाज़ पहुंचती है। मैडम पहले तो मैं ये जानना चाहांगा कि ਤੁਹਾਡਾ शुभ नाम की है? मेरा नाम ओम वंदना देवी है। बिलोंग कितों तो करते हो? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से आए हो, तो इस मंडली के साथ कब से जुड़े हो और किस मतलब भावना कैसे जागृत हुई कि मैं ये मंडली के साथ जुड़ना है? मैं यहाँ पर 2020 से जुड़ी हुई हूँ। 5 साल हो गए मुझे जुड़े हुए, और यहाँ पर परमात्मा का अवतरण होता है। रीज़न मैं ये जानना चाहूँगा, रीज़न क्या हुआ आपके मन को लगा कि मेरे को यही मंडली ज्वाइन करनी है? मैंने यही बता रही हूँ कि यहाँ पर परमात्मा का अवतरण होता है, तो ये देखकर कि निराकार परमात्मा का अवतरण हमारी देवकी मैया के अंदर होता है, तो ये सब देखकर उनकी दृष्टि पाने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए मैंने ये ओम मंडली ज्वाइन की है। आपको अब तक क्या क्या हासिल हो चुका है? देखो, ओम ध्वनि करने से आप फ़ायदे तो बहुत हैं। आप फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से ठीक हो सकते हैं। तो सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जो हमें अभी तक कमी थी, उसकी अनुभूति होती है। तो जब हम ओम करते हैं ना, तो ओम करते करते इतनी पावर आ जाती है। सुना है ना, नासा ने भी बोला है कि ब्रह्मांड की एनर्जी भी ओम है। तो हम भी जब ओम चैंटिंग करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी और ब्रह्मांड की एनर्जी एक साथ आ जाती हैं, और उससे हमें सुख, शांति और असीम आनंद की अनुभूति होती है, और हम परमात्मा से ऐसे मिल जाते हैं कि उससे प्रेम अनुभव होता है हमको। तो इसीलिए हम इस ओम चैंटिंग करते हैं, ओम करते हैं। ओम का उच्चारण करके बताएंगे आप? बिल्कुल बताऊंगी। हम लोग क्या करते हैं, जैसे वैसे फिज़िकली भी करो, आप श्वास लो, फिर इनहेल करो, फिर एक्सहेल करो। तो हम क्या करते हैं कि अच्छा सा एक संकल्प ले लेते हैं कि मैं एक खुश नसीब आत्मा हूँ जो परमात्मा की गोद में बैठी हुई हूँ। तो उसको सोच कर हम लोग ओम चैंटिंग करते हैं। जैसे हम एक ध्वनि करेंगे, ओ सिर्फ मुख से बोलना नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, शाइनिंग स्टार हूँ, और परमात्मा भी जो है वो प्रकाश है। तो उस प्रकाश को हम नज़दीक लेके अपने आत्मा को उससे मिलाते हैं, प्रकाश से प्रकाश मिलता है। साथ में हम ओम चैंटिंग करते हैं। तो एक्सहेल में क्या है कि मेरी सारी बुराइयां निकल रही हैं, और इनहेल में क्या है कि परमात्मा की जो शक्तियां आ रही हैं वो मेरे भीतर जा रही हैं, जिससे मैं क्योर हो रही हूँ। बीमारियां भी दूर होती हैं सारी जो आम लोगों को प्रॉब्लम राधे रहती हैं? बीमारियां दूर होती हैं। देखो, योगा में भी कहते हैं कि ओम को चैंट करो, ओम करो। इससे क्या होता है, आपका डिप्रेशन, स्ट्रेस और कई तरह के, जैसे भ्रामरी भी बोलते हैं, इन चीज़ों को करते हैं तो ये सब क्योर होते हैं। तो ओम करने से भी क्या होता है, हम इतने खो जाते हैं परमात्मा की लगन में कि वो सब करते करते हम डिप्रेशन में, स्ट्रेस में सब ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम एक खुशी में आ जाते हैं, और हमें एक ना एम मिल जाता है कि इसको करते 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 मुझे आगे मंजिल पर बढ़ना है। तो ये कृष्णा मंदिर में जो आप मॉडल टाउन लुधियाना में सत्संग करने जा रहे हो, उससे पब्लिक को क्या मैसेज देना चाह रहे हो? हम लोग देखो, भारत के हर स्टेट में ओम का प्रचार कर रहे हैं। सब अपने आप को ना अलग अलग मानते हैं, अलग अलग धर्म का मानकर अपने आप को अलग अलग कर रहे हैं। परमात्मा एक है,
हम सब परमात्मा के बच्चे हैं, हम अलग नहीं हैं। और वैसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन क्या है, धर्मों के आधार पर क्या कर रखा है, अपने आप को बिल्कुल सेपरेट अलग कर रखा है, तो उससे नफ़रत बढ़ रही है। तो हम इसलिए यहाँ पर लुधियाना में भी आए हैं, क्योंकि हर स्टेट में हम जाते हैं और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम आए हैं। हम पब्लिक को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। हम परमात्मा की संतान, एक ही परमात्मा है, उसकी संतान है। तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हम सब ओम के द्वारा, क्योंकि ओम हमारा बीज मंत्र है, ब्रह्मांड की ध्वनि है, और उसको हम भूल गए। हर मंत्र में ओम है, हर आरती में ओम आता है ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम जय जगदीश हारे। तो ओम क्यों आता है? लास्ट में भी, एंड में भी ओम आता है। तो ये ओम, इसीलिए हमने ओम को एक छोटा सा मंत्र, जिसमें ना कोई विधि है ना कोई परेशानी है, बस बैठो एक अच्छे से स्थान पे और आप ओम ध्वनि करो और उससे अपने आप को सुख शांति दो। देखो, हाथ जोड़कर आप मंदिरों में जाते हो, मूर्तियों के आगे या ग्रंथों के आगे खड़े होके आप सुख शांति मांग रहे होते हो कि हम अच्छे रहें। तो अपने आप खुद घर में बैठ के करो ना ये सब चीज़ें। आप देखो, घर में बैठ के ओम की चैंटिंग करो, आपको सुख शांति मिलेगी, आपको माइंड आपका डेवलप होगा और एक एनर्जी, एक खुशी आपके अंदर आएगी। तो ये खुद बैठ के घरों में करो, मांगने से नहीं मिलता, करना पड़ता है। तो इसलिए आप ओम की ध्वनि को कीजिए। हम ये मैसेज देना चाहते हैं, सब मिलकर ओम ध्वनि करो, संगठन में भी करो, तो आपकी घर की वाइब्रेशंस, आपकी घर की ये जो नेगेटिविटी है सब दूर भाग जाती है, पॉजिटिविटी आती है। मेडिटेशन करने से। हाँ बिल्कुल, ये मेडिटेशन जैसा ही है। तो लेकिन आप ओम गले से निकालेंगे ना, तो ये जो थायराइड वगैरह होते हैं ये भी ठीक हो जाता है। आपका स्टमक, पेट से आप हवा ले रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं आप, तो पेट की बीमारियां भी दूर होती हैं। तो इसलिए से ये मेडिटेशन भी हो गया, साथ में आपके लिए फिजिकली और मेंटली भी अच्छा हो गया। भगवान से भी अटैचमेंट, और भगवान से भी अटैचमेंट हो गई। ये नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने ही बताया है कि ओम को करो। पहले ऋषि मुनि सन्यासी क्या करते थे? वो भी ओम चैंट करते थे। और ये देखो, शंकर जी को आप देखते हो तपस्या में, वो भी शिवलिंग के सामने बैठे हैं, तो उनका भी मंत्र क्या है? ओम। तो ओम करने में मज़ा भी आता है, आनंद की अनुभूति होती है। ओम कीजिए, देखो आप कितना आनंद मिलेगा आपको और कितना उसका बेनिफिट मिलेगा, ये करके देखना चाहिए। एक बार फिर दर्शकों को बोल दीजिए कि आपका फंक्शन किस दिन कितने बजे? देखो, हमारा फंक्शन है लुधियाना के श्री कृष्णा मंदिर मॉडल टाउन में 10 से 1 है। कहने को तो ये सत्संग है, परंतु परमात्मा अवतरित होंगे, सबको दृष्टि मिलेगी, पावर मिलेगी, और साथ में हम बैठकर ओम भी करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे होने वाले हैं। लेकिन आप उस एक दिन ही नहीं करेंगे, घर में भी बैठकर 5-5 मिनट सुबह और शाम आप ओम की ध्वनि कीजिए। और ये मेरा आग्रह है आपसे कि उस दिन आप ज़रूर पधारिए। आपका सादर आमंत्रण हम करते हैं और आपके आने को हम स्वीकार करते हैं। आप ज़रूर आइए, सादर आमंत्रित है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, थैंक यू।